आइए आपको सिखाते हैं टिप्स फॉर शॉर्ट स्पीकिंग। ओके, आपको शॉर्ट स्पीकिंग करनी है। अब आप कहोगे सर ये शॉर्ट स्पीकिंग क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग। सी, जब आप कोई बोलने जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you need to take a topic and you have to explain it in your own way by using few sentences, by applying few sentences. In short speaking, you don't have to speak much. You have to speak few lines about a topic. If I give you a very interesting topic to speak about, English and job, तो क्या आप शॉर्ट स्पीकिंग में अपने व्यूज रखोगे? If I give you trees, क्या आप रखोगे? If I give you water and its importance, क्या रखोगे? अगर मैं आज आपको साइंस दे दूं, साइंस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो आपकी क्या ओपिनियन होगी इन सब के बारे में? दैट वुड बी द शॉर्ट स्पीकिंग। देखो, आप अगर इंग्लिश के बारे में बोल रहे हो, सो इन इंग्लिश यू कैन से, आज के समय में बिना इंग्लिश सीखे आप जॉब नहीं कर सकते हैं। At present, you can't do job without learning English, without knowing English. किसी भी MNC में बिना इंग्लिश के जॉब ही नहीं मिलता है। In any MNC, you don't get job without knowing English. English बहुत जरूरी है। English is must. English is must there. English is compulsory there. जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करोगे, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपनी हिंदी भाषा में? आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में? When you communicate with any international client, how you communicate with them in your native language? आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे बिना इंग्लिश जाने। You won't be able to communicate without knowing English. इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये होगी कुछ लाइन। मैंने कहा चलो नाउ स्पीक अबाउट ट्रीज। ट्रीज के बारे में शॉर्ट स्पीकिंग करो। सो ट्रीज के बारे में जो 10, 15, 20 लाइन आपके दिमाग में है। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, they maintain our ecological balance, they give us everything. We get firewood, we get herbals, we get fruits, vegetables, and all the using things. You know, today our house is decorated with furniture, and how we get this furniture? Through trees. You know, so trees are very important. Without trees, we cannot exist on this earth. And the good thing is that trees always give us. They don't take us anything. They provide us oxygen, and you understand the importance of oxygen. We cannot live without it. So just speak few lines about the topic. Any topics that comes in your mind. Sir, I'm speaking about my school today. Sir, I'm speaking about my college today. Sir, I'm speaking about my workplace where I do job. Sir, I'm speaking about my company where I'm working. You can take any topic on which you can speak few lines. So this is called the short speaking. In the short speaking, you don't need to speak much, you have to speak few lines. And once you are able to speak few lines, once you are able to make few sentences, you find something new in your speaking. You will find that now I'm able to speak few lines, so I can just maximize my speaking. I can speak lengthy, I can speak much if I can speak less. शुरुआत कम से ही होती है। अगर आप कम बोल पाते हो तो कम को जोड़ जोड़ के आप ज्यादा बोलने लग जाओगे। इसीलिए शुरुआत कम से करो और धीरे धीरे उसको ज्यादा की ओर लेकर जाओ। समझदार स्टूडेंट वो नहीं होता जो कि ज्यादा बोल देता है। समझदार स्टूडेंट वो होता है जो कम बोल के धीरे धीरे ज्यादा बोलने की कोशिश करता है। सो अगर आप ज्यादा लंबे, जैसे एक कंप्लेन अक्सर स्टूडेंट हमसे करता है, सर आई एम अनएबल टू स्पीक कंटिन्यूअसली, आई स्पीक फ्यू लाइन्स, देन आई गेट स्टक एंड आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक नेक्स्ट. So this is the common problem that they have, and we just find these things because we have been teaching for a long time and we have noticed this thing. It happens. It's a part of learning. Feel relaxed. See, what you need to do if you are speaking, if you are able to speak less and you are not able to speak confidently and continuously for a long time, what you need to do, you need to speak, apply this short speaking technique. Just take any simple topic, try to speak few lines about it. Once you become habitual to speaking for 15 to 20 days, when you do this activity, you automatically start speaking lengthy. क्योंकि अब आपका ब्रेन जो है ना सेंटेंस प्रोड्यूस करने लग गया। अब आपका ब्रेन जो है कंटिन्यूसली बैक टू बैक नई नई चीजें जो है प्रोड्यूस करने लग गया। एंड वंस यू आर एबल टू स्पीक बैक टू बैक, वंस यू आर एबल टू स्पीक कंटिन्यूसली, आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक जो है एक रिदम क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप हिंदी में बात करते हो, when we talk in Hindi, do we ever think what we are speaking? No, we just produce an idea and we keep speaking around it. Even sometimes we don't know that which sentence we are going to use.
But in case of English, we even use that. We are using tense, we are using modal verbs, we are using advanced model, we are using passive voice. So why we have to think so much grammar? Why we have to think about the structures, about the sentences in English? Because in English, we are not that much perfect as we are in Hindi, as we are in our native language. So this is very important that in our native language we don't need to think, we just get idea. In Hindi, if I say now speak about your school, तो आप ये थोड़ी सोचो कि मैं स्कूल में कितने कमरे हैं ये बताऊंगा, स्कूल में कौन प्रिंसिपल है ये बताऊंगा, स्कूल में कितना बड़ा ग्राउंड है मैं ये बताऊंगा, स्कूल में कितने रूम्स हैं. नो, यू ऑल नो ऑल दिस थिंग्स, एंड व्हाट यू डू, यू विल जस्ट ट्राई टू string the sentences as we string the flower in a particular garland. In the same way, you just string your sentences in your speech, and just after some time, after 2 and 3 minutes, once you complete your speech, it will look beautiful. In the same way, the same concept apply in English. In English, when you are clear what you have to say, in English, when you know what exactly you are going to produce, so you keep speaking constantly. और इसके लिए कोई ज़्यादा डेडिकेशन हमें, इसके लिए कोई ज़्यादा इफर्ट्स लगाने नहीं होते. इसके लिए कुछ 15-20 दिन की एक प्रैक्टिस होती है कि पहले आप शॉर्ट स्पीकिंग करो, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताओ, छोटे छोटे जो भी ऐसे टॉपिक्स है जिनका आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वो अपनी रूटीन में लेकर आओ, एंड देन उसके बाद लॉन्च करो फिर आप लेंथी स्पीकिंग की ओर, है ना. एक और काम इसमें आप कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो कि आप क्या करो, जो आप बोल रहे हो ना, वट एवर यू आर स्पीकिंग, जस्ट रिकॉर्ड इट इन योर सेल्फी कैमरा. We all have cell phone, we all have smartphones. Now in the smartphone, switch on your selfie camera and just stand up before it and record it, everything that you are speaking, and feel and see yourself how you are looking, how you look when you speak. Because sometimes when we speak, our body language changed, our expressions, our facial expressions, gestures, postures, everything changes. And why it changes? Because we are not habitual to speak before camera. We are not habitual to speak this particular new language, so-called English. You know. So I insist you all कि आज से और अभी से इसकी practice शुरू करो आप, and see the magic. You will find a remarkable changes in your speaking. You will find that all the things are very easy to speak. You will find that things are not tough. You will find that they are very easy to do it. और जहाँ ये आपने कर लिया ना, रंग जमा दोगे, धूम मचा दोगे. सो आज से और अभी से शॉर्ट स्पीकिंग करना स्टार्ट करो. अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में आप क्या कर सकते हो, वाटर में आप क्या कर सकते हो. इन वाटर यू कैन स्पीक अबाउट कि पानी को कैसे हमें यूज करना है ना, व्हाई वी शुड सेव वाटर, एंड व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी टू सेव द वाटर, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इफ वी डोंट सेव द वाटर टुडे, द सोर्सेस दैट प्रोवाइडेड वाटर एंड हाउ वी आर पोल्यूटिंग दिस सोर्सेस, how we are polluting this water natural resources, you know, and why we need to control the pollution of water. So ये सारे के सारी चीजें, the disease that is caused by polluted water, you know, so we have to talk from the all angle, हर एंगल से हर चीज को हमें एक्सप्लेन करना है. तो ये शॉर्ट स्पीकिंग जब आप करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन अच्छा बोल पाएगा. देखिए आपको फिर बता दूं, मैं इंग्लिश सीखना और कॉन्फिडेंटली बोलना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ. आप अंग्रेजी में बात कर लोगे, जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप अपनी मातृभाषा में बात कर लेते हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मातृभाषा में अच्छा भाषण भी दे लेते हो. आर यू एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन योर नेटिव लैंग्वेज ऑन दिस स्टेज? आर यू एबल टू डिलीवर स्पीच कॉन्फिडेंटली इन योर नेटिव लैंग्वेज? लेट मी नो. आप नहीं कर पाते ना. इन द सेम वे आपको क्या करना है कि आप जो है सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये होगा कि शॉर्ट स्पीकिंग करेंगे, छोटे छोटे कंटेंट बनाएंगे, छोटी छोटी चीजों को प्रिपेयर करेंगे, एंड वंस यू आर एबल टू प्रिपेयर ऑल दीज स्मॉल थिंग्स, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. लेकिन पहले आगे जाने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स क्रॉस करने होंगे. और ये दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. आप अगर इंग्लिश में अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं इंग्लिश में करें, आप हिंदी में बनना चाहते हैं हिंदी में अच्छे स्पीक. आप कहेंगे सर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वी आर वेरी गुड इन इंग्लिश, वी आर वेरी गुड इन हिंदी, वी कैन स्पीक हिंदी कॉन्टिन्यूअसली विदाउट थिंकिंग. नो, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट गुड इन हिंदी टू. आप कैसे कह सकते हो सर कि हम हिंदी में अच्छे नहीं, हमारी मातृभाषा तो हमको अच्छे से आती. आपको मातृभाषा की समझ भी नहीं अच्छे से है तो आप कहोगे सर कैसे आप कह सकते हो. वो मैं ये से कहूंगा कि चलो एक काम करिए, आप मुझे पेड़ों के बारे में बोल के बताइए. 5 मिनट तक आपका भाषण चलना चाहिए और धमाकेदार भाषण होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. आप बोल कर देखिए, आपको खुद को फील होगा कि यार कुछ सेंटेंसेस बोलने के बाद में आवर माइंड गोज ब्लैंक, वी गेट स्टक, वी डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट. सो व्हाई इट हैपेंस? It happens because we know how to speak,
but we don't know what to speak. This is the common problem that we find with the people. और आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आती है, और इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है रीडिंग. इस परेशानी को एक ही दूर करने का तरीका है नॉलेज बढ़ाना. वी हैव टू गेन नॉलेज. वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. वी नीड टू रीड द बुक्स. वी नीड टू नो अबाउट द पीपल. वी नीड टू नो अबाउट द सिचुएशन. ये सारी चीज को जानना समझना पड़ेगा. मैं आज अगर मैं आपको भारतीय राजनीति के बारे में बोलने के कहूं, इफ आई से यू टू स्पीक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, डू यू थिंक यू कैन स्पीक अबाउट इट? ठीक है, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक यू कैन स्पीक अबाउट इट कंटिन्यूसली फॉर 5 to 10 minutes? सो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो शॉर्ट स्पीकिंग से आती है. पहले छोटे छोटे स्टेप्स क्रॉस करो. स्पीक फ्यू लाइन्स अबाउट द टॉपिक. कलेक्ट योर डेटा, द डेटा दैट यू आर गोइंग टू स्पीक. आज आप देखो जितने भी अच्छे स्पीकर से ये क्या करते हैं, दे जस्ट मेक पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग. That now in the beginning I have to speak these points, later on I have to add on this point in my speech, and in the end I have to conclude my topic by saying these lines. So they have a particular what I can say, a pattern to speak continuously, and they just go through it and they are able to speak confidently. So this is the funda to speak that I apply, and I insist you all to apply the same thing in your speech. So अगर आप आज से और अभी से start करते हो ये सारी चीजों को करना, then it is going to be very beneficial for you all. आप एक बहुत बड़ा बदलाव अपनी स्पीकिंग में फील करोगे, क्योंकि देखो हमने हमारी जर्नी को शुरुआत कहां से करी और कहां तक लेकर आए. आई नो दैट मेनी ऑफ यू हैव बीन वॉचिंग अवर यूट्यूब वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद आप सेशंस भी अटेंड कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है इस लेवल पर तो आ चुके हो कि आप किसी चीज को समझ सकते हो, समझा सकते हो. यू कैन टॉक विद एनीवन इन इंग्लिश, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन इंग्लिश, बिकॉज वी आर ऑन द लेवल वेयर वी कैन कम्युनिकेट. बट द थिंग इज दैट कि क्या हम उस लेवल पर आप पहुंच गए जहां हम कॉन्फिडेंटली किसी चीज को बोलने लग जाए? सो दैट्स वी नीड टू थिंक अबाउट. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, स्पीकिंग जो है एक आर्ट होती है. इट्स एन आर्ट, एंड दिस आर्ट कैन बी इंप्रूव्ड ओनली बाय स्पीकिंग. दिस आर्ट कैन बी इंप्रूव्ड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग. सो कलेक्ट द डाटा ऑन विच यू हैव टू स्पीक. अगर आपको अपने स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी कोई भाषण देना है, स्पीच देना है, तो फर्स्ट प्रिपेयर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू स्पीक. Collect the data that you are going to speak, and now practice it continuously and see the magic. जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलोगे, अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करोगे, you will be able to speak confidently. This is the funda that we have to apply in speaking. वाओ, चलिए अभी हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आज से ही शॉर्ट स्पीकिंग करना सारे स्टूडेंट करेंगे. चलिए आइए, मैं शॉर्ट स्पीकिंग पर बेस्ड आपको कुछ कंटेंट दे रहा हूं जो आप सबको करना है. अब मैं आपको यहां पर छोटे छोटे टॉपिक दे रहा हूं, सभी बोलने की कोशिश करना मेरे साथ, है ना. ईमानदारी एक उत्तम नीति है, बोलो. ऑनेस्टी के बारे में बोल रहे हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आज के समय में ईमानदार होना बड़ा ही कठिन है. क्या बोलोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट इन द मॉडर्न टाइम. ठीक है, आज ईमानदार लोग बिरले ही मिलते हैं. वी फाइंड, या फिर आप ये भी कह सकते हो, पेसिव में बना दो, ऑनेस्ट पीपल आर फाउंड रेयरली एट प्रेजेंट. यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो निश्चित ही आप सफल होते हैं. इफ यू आर ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क, यू श्योरली सक्सीड. आपकी सफलता आपकी ईमानदारी के पर निर्भर करती है. Your success depends on your honesty. आप कितने ईमानदार हैं यह दर्शाता है कि आप कितने सफल हैं. How honest you are shows how successful you are.
व्यक्ति दूसरों को धोखा दे सकता है लेकिन अपने आप को नहीं। अ पर्सन, व्यक्ति के लिए वन भी लगा सकते हो। वन कैन चीट अदर्स बट ही कैन नॉट चीट हिमसेल्फ। वन कैन चीट अदर्स, अ पर्सन कैन चीट अदर्स बट ही कैन नॉट चीट हिमसेल्फ। लेकिन वो अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। आप स्वयं जानते हैं कि आप कहां सही और कहां गलत है। यू नो योर सेल्फ, वेयर यू आर राइट, वेयर यू आर रॉन्ग, यू नो। सो मैं नहीं बोलता आपसे कि आप बहुत स्टैंडर्ड लेवल की स्पीकिंग करो। इनिशियली यू हैव टू स्पीक वेरी सिंपल सेंटेंसेस, और जहां ये सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल पाए, ऑटोमेटिक आप बड़े लेवल पर जा पाओगे, ऑटोमेटिक आप अच्छी स्पीच दे पाओगे। लेकिन शुरुआत जीरो से ही होती है, शुरुआत छोटे छोटे सेंटेंस से होती है। चलो आइए मैं आपको दूसरा टॉपिक लिखवा दूं। चलो स्कूल एजुकेशन के बारे में लिखो। लिखिए, स्कूली शिक्षा एक बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लिखो, क्या बोलोगे? स्कूल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे के विकास के लिए, मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अगर एक बच्चे की आधारभूत शिक्षा मतलब जो बेसिक एजुकेशन है वो स्ट्रांग होगी तो वो आगे अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। इफ अ चाइल्ड गेट्स basic education perfectly, so he will be able to study further, तो वो आगे पढ़ाई कर पाएगा। बिना स्कूली शिक्षा के एक बच्चा कभी तरक्की नहीं कर सकता। Without school education, a child can't progress। अब ये जो हम लिख रहे हैं, क्या हम बहुत टफ भाषा में लिख रहे हैं? आर वी यूजिंग अ टफ लैंग्वेज? नो, वी आर यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज। और ये वो भाषा है जो आपको इनिशियली लिखना शुरू करना है। मैं नहीं बोलता आपसे कि डायरेक्ट आप बुक की भाषा लिखो या बुकिश लैंग्वेज आप लिखो। जनरली है ना, आज भी इस चीज को नहीं समझ पाए हैं कि हम कॉपी पेस्ट वाले समाज में रह रहे हैं, जहां जिसने बुकिश भाषा को एज इट इज टीप दिया वो अच्छे नंबर ले लेता है। ऐसा नहीं है। आज अगर आप IAS एस्पिरेंट हैं, आपकी वहां पर बुकिश भाषा नहीं देखी जाती, आपकी वहां पर आपके विचार, आपके थॉट्स देखे जाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें कितना स्टैंडर्ड है वो चेक किया जाता है। ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स को एक माइंडसेट क्या रहता है कि अगर हम एक किताबी भाषा का उपयोग करके, दैट्स ओके, यू कैन यूज इट दैट लैंग्वेज टू, बट उस लेवल पर अभी हमें पहुंचने के लिए शुरुआत तो वहीं से करनी होगी ना। वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट बेसिक थिंग्स। और कोई सा भी टॉपिक ले लो, आज ही मैं आपको करीब 10 टॉपिक देता हूं, आप इन 10 टॉपिक्स पर अपने घर खुद लिखने की कोशिश करना। लिखना आप पेन के बारे में, लिखना आप पेंसिल के बारे में, ये बहुत बेसिक लेवल के टॉपिक है। लिखना आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लिखना आप माई सिटी के बारे में, लिखना आप माई फैमिली के बारे में, लिखना आप करप्शन के बारे में, ठीक है। लिखना आप और भी जो ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, है ना, सेलफोन के बारे में लिख लो, यूजर्स एंड मिसयूजर्स ऑफ सेलफोन, टेलीविजन के बारे में लिख लो, क्रिकेट मैच के बारे में लिख लो, जो भी आपका है। आपने कहा क्रिकेट मैच के बारे में क्या लिखूंगा सर, मुझे तो आइडिया नहीं। अरे क्रिकेट तो समझते होंगे ना, क्रिकेट क्या होता है वही समझा दो। क्रिकेट इज अ काइंड ऑफ गेम which is played between two teams. In a single team there are 11 players, okay, in the another team there is also 11 players, okay, so this 11 players in each team collide with each other and now there is a competition. So इस तरीके से क्रिकेट को आप एक्सप्लेन करो। इसके बाद में क्रिकेट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? यू कैन स्पीक अबाउट द IPL 2, इंडियन प्रीमियर लीग, जो हर साल होता है, उसके बारे में बता दो। तो हर छोटी छोटी चीज जो आप रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसकी वैल्यू करो, उसको समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो। जब आप ऐसे करोगे ना तो धीरे 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 आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। और यही लर्निंग का फंडा है, यही सीखने का शॉर्टकट है,
इसकी मदद से ही आप बड़े बड़े मुकाम हासिल कर पाओगे। कोई भी काम इनिशियली छोटा ही होता है और जब वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं हम, तो बड़ा से बड़ा चीज भी छोटे लगने लगती है ना। चलिए, तो आज से स्टार्ट करेंगे आप लोग सभी राइटिंग का काम, है ना।